Hello everyone, myself Karan, and in today's video we will discuss like how I got these 4 offer letters in my BCA final year. तो देख सकते हो यार, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मेरे को अपने फाइनल ईयर में और यू कैन से लास्ट ईयर में मेरे को अपने BCA में 4 ऑफर लेटर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से कैसे मिले. एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस video, I'm making this video to make you aware that it is not like that if you are pursuing BCA so you can't get this job. Okay, मैंने बहुत बार सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में, कुछ सीनियर्स भी आजकल बताते हैं कि यार BCA की इतनी वैल्यू नहीं है और BCA के बाद तुम जॉब नहीं ले सकते, BCA के बाद अच्छे IT सेक्टर में तुम अच्छे IT कंपनी में नहीं जा सकते. तो देखो, ये ऐसा नहीं है. यू कैन इजीली गेट अ जॉब. ओके, और IT फील्ड में ही ले सकते हो, किसी स्टार्टअप में ले सकते हो. ठीक है, किसी स्टार्टअप में किसी छोटे रोल पे जा सकते हो, धीरे जूनियर डेवलपर पे जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट पे जा सकते हो, सॉफ्टवेयर ट्रेनी पे जा सकते हो. ठीक है, एज अ ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी जा सकते हो, जो कि मेरे भी रोल्स यही थे. तो आप इन रोल्स पे जा सकते हो यार. तो ऐसा नहीं है कि BCA के बाद आपके पास जॉब नहीं है. यू कैन इजीली गेट, बट कुछ टिप्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो और दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. सो कुछ टिप्स एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यार अपनी BCA के दौरान 3 साल के अंदर ध्यान रखनी है अगर आपको लास्ट में प्लेसमेंट चाहिए. क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी था ऐसा. जो मेरे बैच के बच्चे थे, तो जिस टाइम मेरे को ऑफर मिले थे उस टाइम उनको ऑफर नहीं मिले थे. एंड उन्होंने, जैसे मैंने BCA में थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैंने BCA में थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया था. ठीक ठाक CGPA भी बन गई थी, थोड़ी बहुत स्किल्स भी ग्रैब करी थी, थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी काम किया था. तो उस वजह से मेरे को BCA के लास्ट में जॉब लेने में बहुत आसानी हुई. वो मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगा डिटेल्स, वीडियो में आती रहेंगे वो तो. बट क्या हुआ कि मेरे जो और साथ के थे उनको लेने में दे आर हैविंग ट्रबल. वाई? बिकॉज दे हैव नॉट यूटिलाइज देयर 3 ईयर एफिशिएंटली. ओके, उन्होंने CGPA पे ध्यान नहीं दिया, स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया. मतलब दे आर लैकिंग एट सम प्लेसेस. Okay, and after BCA they are applying at different places and now they are just looking for a job. So this situation can be there if you are not serious in your BCA. If you are if you are living a college life, so you can live on first year. Then you need to be serious. Okay, if you want a job, if you are planning to do MCA, then then there is no problem. But if you are planning for a job, so you need to be serious in second year. You just need to focus on yourself, your personal growth, your skills, your languages and all that. Okay, so I got these and I will also show you the screenshot of offer letters on your screen. You can see, so that you can trust on me that I am not lying to you that I got these offer letter. No, these are not fake. I got them really. But yeah, finally I am not into any of the company because I do not join any of the company. So first of all, why job? If you are planning for MCA, that is good. But the job is for those person who are not financially able, or they are not financially supported by their family, or that if they have having some financial issue, so if they are looking for a job, that's good. But yeah, if you have an option for pursuing MCA, so that, you can go. That's your choice basically. And if you're asking me this question that you should go for a job or you should go for a MCA, see, this is totally depend on you, yaar. Okay, this totally depends on you. I'm also very confused, but yeah, I'm finally pursuing MCA because with God's grace I do not have any financial issue. So my family also told me, my cousins told me to pursue MCA, and after that I can go for a job. So I got these offers. I just rejected them. They have the decent package, that is 3 to 4 LPA. So now start the video. I will tell you how I got these and what are the small things which you need to just understand and you should follow in your BCA. Okay, so that you can easily get a job easily. Okay, that's not a big issue. So first of all, you can see on your screen now, you can trust on me that yeah, I got these offer letters. So yeah, see, if you are in a BCA now, so you have some subjects like OS. I just read. So you will definitely have some subjects like OS, DBMS, and CN, that is computer network. Okay, that is operating system, and database management system. You will definitely have this management system. Computer networks you have. You will also have software testing. Maybe you have web designing. Okay, or you see, you have C++,
you have C, you have Java also, okay, you have AI also, okay. So these are the subjects which you are having in your BCA. So my suggestion to you, just these are some subjects like not web designing. Here comes HTML, CSS, JavaScript, software test. So these are some fundamental topics, or you can say fundamental subjects that you need to understand first, and you need to make first that you need having the understanding of their basics, okay, like how this operating system works basically. So what happens, आपको ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये सबसे पहले मेंटेन करना है, मतलब मेंटेन कैसे करना है, देखो आपके सेमेस्टर में तो होंगे, तो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको इनके प्रॉपर नोट्स बनाने, नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी अपनी अंडरस्टैंडिंग करके या फिर कहीं से भी अगर आपको अच्छे नोट्स बन जाते हैं तो वो तो वेल एंड गुड है। तो आपको पहले ये सब्जेक्ट सारे क्लियर करने हैं, ठीक है। इन डेप्थ आपको समझना है, ऐसा नहीं सिर्फ रटने नहीं, आपको समझना है, तभी आपको थोड़ा कंप्यूटर फंडामेंटल की नॉलेज आएगी, ठीक है। आप बीसीए कर रहे हो, आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो आप वहाँ पे पढ़ोगे कि यार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक है, ओएस है, सॉरी यूनिक्स लिनक्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये आप समझोगे, और बहुत सारी चीजें पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे आपको टॉपिक मेंटेन करना है। उसके बाद डीबीएमएस टॉपिक है, इससे आपको पता चलेगा यार जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अमेज़न वगैरह है, तो उनका सारा आजकल बहुत सारा डेटा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही मेंटेन हो रहा है सारा डेटा, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे मेन चीज पढ़ोगे एसक्यूएल लैंग्वेज आप पढ़ोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत डिमांड है आजकल एसक्यूएल की। और जो मैंने आपको बताया कि मेरे 4 ऑफर थे, मेरे को 4 ऑफर मिले, उनमें से 2 जॉब तो मेरी एसक्यूएल की थी। वहां पे मेरे वो चलो मैं प्रोसीजर बताऊंगा, मेरा इंटरव्यू वगैरह सारा काम कुछ जो भी था वो सारा एसक्यूएल का ही था। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने। और एक देखो कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है और पढ़ना भी है, नोट्स वगैरह जो भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने सबके नोट्स बना रखे थे प्रॉपर बढ़िया, उसमें बिल्कुल लीनियंट फॉर्म में, जो बेसिक कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। मैं इनके सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स है, बढ़िया प्रॉपर इन डेप्थ और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो अब बताता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स की इंपोर्टेंस आपको बताता हूँ। 2 जॉब तो मेरी हो गई इससे बेसिक, मेरे को डीबीएमएस और एसक्यूएल वगैरह के बारे में पूछा गया था, और एसक्यूएल पे ही मेरा काम था वहाँ एज अ डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग। कंप्यूटर नेटवर्क ने मेरे को मदद किया कि मेरी एक जॉब थी जिसमें मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड ही सारे मेरे इंटरव्यूज हुए थे। वहां मेरी जो जॉब थी वो थी एज अ नेटवर्क इंजीनियर ट्रेनिंग, ओके। सो आई वाज, मेरे को जो वहाँ रोल असाइन हुआ, जो ऑफर लेटर में आया, वो था मेरा कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेनिंग, ओके। आई वाज अ कंप्यूटर नेटवर्क देयर। सो यार कंप्यूटर नेटवर्क का भी बहुत रोल है, तुमको कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग करना। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यार तुम टेस्टिंग पढ़ोगे तो इसके बाद भी बहुत सारी जॉब है, जैसे तुम क्यूए एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है, तुम सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो इसी सब्जेक्ट के बेस पे, ऐसा नहीं तुमको डीएसए चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, ठीक है, कोई लैंग्वेज वगैरह आती है, ठीक है, बहुत वेल एंड गुड है, बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और तुम थ्योरी भी पढ़ लेते हो ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की थ्योरी पढ़ लेते हो, थोड़े टेस्ट केस वगैरह बनाने मैनुअली सीख लेते हो, थोड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स होती है वो पढ़ लेते हो, उससे भी तुमको जॉब मिल सकती है इजी। सारा फंडा यहाँ क्या है, जॉब का, कि तुमको बीसीए के बाद जॉब चाहिए, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तुमको बीसीए के बाद जॉब चाहिए और तुम सोच रहे हो कि नहीं यार हमने तो सुना है जॉब मिल नहीं सकती, तो उसके लिए मैं बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ कि जॉब मिल सकती है डिसेंट पैकेज पे, ठीक है। ऐसा नहीं तगड़ा पैकेज, डिसेंट पैकेज पे इजीली मिल सकती है। अगर कोई फाइनेंशियल इशू है, जॉब जरूरी है, तो मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेगी, ठीक है। रोड मैप जो भी है मैं बता रहा हूँ, और तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है जिसने 4 ऑफर लिए थे, और जब मैं कर सकता हूँ तुम भी कर लो। तो ये हो गया यार सारे बेसिक कंसेप्ट जो तुमको बीसीए के दौरान पढ़ने हैं। फिर बीसीए के दौरान नहीं पढ़े तो जब भी टाइम मिले, जैसे भी पढ़ना इनको, इन टॉपिक्स को पढ़ना, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है। ये मदद करेंगे इंटरव्यू में, और इन पर्टिकुलर टॉपिक से ही तुम जॉब भी क्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया यार। अब आती है मेन लैंग्वेज की बात, ठीक है। तो देखो एसक्यूएल का मैंने तुमको बता दिया बहुत था, अब मैं चलो अपना बता ही देता हूँ कि मेरे जो 4 ऑफर थे, तो सबसे पहला ऑफर था मेरा वो था यार एज अ एसोसिएट टेक्निकल कंसल्टेंट। जो मेरा रोल था एसोसिएट टेक्निकल कंसल्टेंट, पहला जो मेरा रोल था, नोएडा में ये जॉब थी मेरी, ये था एसोसिएट टेक्निकल कंसल्टेंट। अब यहाँ पे क्या था यार, यहाँ पे जो मेरे इंटरव्यू हुए वो एसक्यूएल मेन थी, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में जावास्क्रिप्ट वगैरह डाल रखी थी, तो एसक्यूएल जावास्क्रिप्ट वगैरह के मेरे तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद फिर वही डीबीएमएस के बारे में मेरे से पूछे गए, क्योंकि मेरा मेनली वहाँ पे काम एसक्यूएल और इन सब चीजों पे था। तो देखो डीबीएमएस ने मेरे को वहाँ पे बहुत मदद करी, एसक्यूएल मैंने पढ़ी हुई थी, उसने मेरे को मदद करी, देख रहे हो ना। तो इन सब्जेक्ट्स की पावर बहुत है। थोड़ा बहुत हाँ जावा वगैरह के बारे में भी पूछा गया था, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी पूछा गया था, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में लिख रखे थे। दूसरा मैं बता देता हूँ, दूसरा मेरा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग का रोल था मेरा वहाँ पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग की जॉब थी मेरी,
वहां पे मेरे से क्या क्या पूछा गया था, वहां पे मेरे को किस चीज में मदद करी, तो देखो वहां मेरे को जावास्क्रिप्ट जो मैंने पढ़ी हुई थी उसने मदद करी, एसक्यूएल ने मेरे को फिर से वहां पे भी मदद करी, ठीक है। एसक्यूएल ने मेरे को वहां पे एसक्यूएल के भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से वहां से, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट वगैरह, और तुम्हारा थोड़ा सी प्लस प्लस, इनके थोड़े बेसिक वगैरह क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा बहुत डीएस से भी था जिसमें मेरे को एरे वगैरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे गए थे, थोड़े बहुत, ज्यादा कुछ नहीं थे, तो देखो मदद की। अब देखना, फिर आई मेरी कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क ट्रेनिंग, ये रोल मिला मेरे को एक जॉब में, मैंने जहाँ अप्लाई किया था वहां पे मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे कंप्लीटली मेरे से कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स ही पूछा गया, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स का मेरा इंटरव्यू हुआ। 2 इंटरव्यू हुए, एक एमसीक्यू बेस्ड, उसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन आए। उसके बाद 2 इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन पूछे। अगर मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज नहीं होती, मैं सिर्फ उसको पास होने के लिए पढ़ता और मतलब सिर्फ रट लेता पेपर के टाइम, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, तो मेरा ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होता डेफिनेटली। मैंने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करी और मेरे को इसने यहाँ पे मदद करी, तो ये हो गया एक और। उसके बाद चौथी थी यार मेरी ग्रेजुएट इंजीनियर, सॉरी ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग। इसमें क्या था यार, इसमें तो देखो मेनली मैं बताऊं कुछ नहीं था, इसमें तो कम्युनिकेशन स्किल था और बेसिकली HTML CSS, जो कि ये मैंने लैंग्वेज अपने रेज्यूमे में लिखा रखी थी इसलिए, और कम्युनिकेशन स्किल भी देखी थी, इसमें स्क्रीनिंग राउंड वगैरह वगैरह छोटे मोटे राउंड हुए थे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसमें केस स्टडी वगैरह भी बनाने के लिए दिए थे, कुछ टास्क दिए थे कि भाई तुम्हें ये केस स्टडी वगैरह बनानी है। और जैसे मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट डाल रखी थी, तो उन्होंने मेरे को एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए का भी एक टास्क दिया था, तो बेसिकली ये भी हो गया था। अब तुम खुद देखो यहाँ जो भी मैंने चारों जॉब ली, एसोसिएट टेक्निकल असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग, ये बहुत इजी ले सकते हो, बहुत इजीली, कुछ ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया था। बस हाँ बेसिक सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाई, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में थोड़ी बहुत पकड़ बनाई, थोड़ा बहुत डीएसए है जो, थोड़ा बहुत डीएसए के अंदर भी थोड़ा बहुत जैसे एरे वगैरह किया हुआ था मैंने, एरे, स्टैक, क्यू वगैरह किया हुआ था। फिर उसके बाद तुम्हारा स्ट्रिंग किया हुआ था, थोड़ा बहुत लिंक लिस्ट के बारे में पता था, ट्री ग्राफ की थ्योरी पढ़ता थी, थ्योरी वगैरह। इन पे क्वेश्चन वगैरह कुछ प्रैक्टिस नहीं करे थे, क्वेश्चन वगैरह थोड़े बहुत इसमें किए थे, ठीक है, ऐसा था। थोड़े जो प्लेटफॉर्म होते हैं, लीड कोड वगैरह, हैकर रैंक वगैरह, वहां पे जाके कभी कभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, बहुत थोड़ी बहुत, ठीक है। मेनली यही था। और अब सबसे जो मेन चीज आती है, देखो तुम ऑन कैंपस जाओगे नहीं, ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, तुम्हारे कैंपस में बीसीए प्लेसमेंट होती है तो सबसे अच्छा है। बट अगर नहीं होती है, मेरी तरह मैंने भी जो है ऑफ कैंपस लिए थे, तो ऑफ कैंपस जाकर तुम जॉब टारगेट करोगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, ऑफ कैंपस जब तुम जाके जॉब टारगेट करोगे, तो वहां सबसे बड़ी चीज है दैट इज योर रिज्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऑफ कैंपस जॉब जाके ट्राई कर रहे हो और तुमको ऑफ कैंपस जॉब चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। मैंने भी ऑफ कैंपस लिए चारों ही, कोई भी मेरी कैंपस से नहीं है, चारों मैंने ऑफ कैंपस लिए। तो मेरा रिज्यूमे था जो, वो मैं बता देता हूँ क्या था, क्या क्या तुम्हारे रिज्यूमे में चीजें मेंटेन करेंगे। अगर तुम्हारी सीजीपीए अच्छी है तो वो भी एक एडवांटेज है, अगर सीजीपीए अच्छी है तो एडवांटेज है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो एडवांटेज तो देखो है ही। उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, ये बहुत मेंटेन करेंगे, ये बहुत मैटर करेंगे, बहुत ज्यादा। प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं हाई लेवल के बनाओ, बट हाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो कि यूनिक हो। ऐसा नहीं किसी के पड़े हुए गिटहब पे वगैरह से वहां से उठा के डाल दी सीधे, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ थोड़े यूनिक हो, एडवांस मत बनाओ बट यूनिक बनाओ, ठीक है। तो जब यूनिक बनाओगे तो एडवांसमेंट थोड़ी बहुत अपने आप ही आ जाएगी वहां से। तो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे तुमको सेलेक्ट करेंगे, 2 प्रोजेक्ट कम से कम डालना, 2 ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं डाल सकते, एक भी डाल देना, कोई नहीं, अगर एक बनाया तो एक डालना, 2 डालना, बट प्रोजेक्ट यूनिक हो, कॉपी ना हो, थोड़ा सा हाँ ये लगे कि इसमें क्रिएटिविटी डाली है प्रोजेक्ट में, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाना, मैं अपने रेज्यूमे को भी प्रोवाइड कर दूंगा, उससे भी देख लेना, उससे भी थोड़ा सीख सकते हो। उसके बाद तुम्हारी स्किल्स मैटर करेंगी, स्किल्स डालना अपनी जो भी। उसके बाद एक और चीज जो बहुत अच्छा मैटर करेगी, दैट इज सर्टिफिकेशन। देखो सर्टिफिकेशन होते हैं, कुछ फ्री सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती है, कोडिंग निंजा, हैकर रैंक वगैरह वगैरह और कोडशॉप वगैरह वगैरह, तो तुम वहां से जाके सर्टिफिकेट ले सकते हो फ्री के, और उनको जाके अपने रेज्यूमे में ऐड करोगे कि मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मेरा ये अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें तुम मेंशन करोगे, वहां से तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा बनेगा, ठीक है, अच्छा बनेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत गिटहब का वगैरह का लिंक दे दो अपना, गिटहब का अगर तुमने छोटे मोटे प्रोजेक्ट जाके डाल रखे हैं तो वो लिंक दे दो। तो ये सारी चीजें तुम्हारे सीवी को बनाने के, रेज्यूमे को बनाने के लिए, और रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम ऑफ कैंपस जॉब ट्राई कर रहे हो तो, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही है सारा कुछ जो मैंने बताया कि बीसीए के बाद तुम जॉब ले सकते हो, तो यही सारा कुछ है, ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके तुम जॉब लोगे। एमसीए मस्ट है, अगर तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, मीन्स इन द सेंस फाइनेंशियली, और तुमके पास तुम्हारे पास पैसे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो आगे, तुम्हारे पास टाइम भी है, बिजी लाइफ में टाइम भी, ऐसा नहीं तुम्हारी एज वगैरह होगी,
सो यू शुड गो फॉर एमसीए. बट इफ यू नीड जॉब, इफ यू हैव सम फाइनेंशियल इशू, सो बीसीए के बाद जॉब इजीली ले सकते हो. कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में तुम मेरे से पूछ सकते हो. लिंक्डइन मैं अपना नीचे डाल दूंगा, लिंक्डइन पे जाके भी तुम देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है चारों के ऑफर के बारे में. और ये ऑफर मैंने तुमको स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे, चारों ऑफर, जिससे तुमको ये ना लगे कि मैं सिर्फ यहाँ के ये कह रहा हूँ कि बीसीए के बाद जॉब ली जा सकती है इजीली. ऐसा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम प्रूफ देख लेना. और कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यही सारा बेसिक है यार. ये सब्जेक्ट थोड़ा मेंटेन कर लो, थोड़ा बहुत इन चीजों पे पकड़ बना लो, थोड़ी बहुत थोड़ा इनसे वो करो. और ऑफ कैंपस जा रहे हो तो ये सारी चीजें ट्राई कर लो. ये सारी चीजें मतलब बहुत जरूरी है, तुम्हारे रिज्यूमे में होनी चाहिए. ठीक है, सिलेक्शन के लिए. तो यही था कि हाउ आई गॉट 4 ऑफर लेटर्स इन माय फाइनल ईयर. यार तब मेरे एग्जाम नहीं होते, तब मेरे पास 2 आ गए थे. मेरे फाइनल एग्जाम नहीं होते, बहुत अच्छा लगा था. तो मेरे पास 2 ऑफर लेटर आ गए थे जब मेरे फाइनल एग्जाम होने से पहले, होने के करीब 1-2 वीक पहले आ गए थे. फिर उसके बाद जब मैंने मतलब ज्वाइनिंग वगैरह मेरी आ गई 2 की, तो मैं और जगह अप्लाई करता रहता था. तो उसके बाद मेरे पास ये 2 भी आ गए थे. बहुत कॉन्फिडेंस आया यार मैंने जब इतने इंटरव्यू वगैरह क्लियर करे. तो तुम भी इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दीज आर हार्ड. तुम भी इजीली कर सकते हो. थोड़ा स्किल, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन वगैरह इन पे ध्यान रखना. ठीक है, कम्युनिकेशन देखो मैंने बताया, एक ने मेरे को कम्युनिकेशन में मदद करी थी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग राउंड वगैरह हुए थे ना, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में मेरे को मदद की थी. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट दी जॉब. एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.